sir. Who has answered that? Rudran Sharma, sir. Okay, excellent, Rudransh. We'll go for the next question and let's see if you know the answer for this. The forum is open. You can answer in your chat box, है ना? This is basically to check your progress कि आप कितना आपको कल समझ में आया है क्लास को, है ना? ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, 2-3 क्वेश्चंस ही. Anyone? Oops, no one. The Arabica coffee. Ranjit Kumar is answering that. हाँ रंजीत, ठीक है, बताओ. One is Arabica and Arabica coffee, and second one is. I have received the response from Abhishek Kumar. Yes, Abhishek, that is right. And Aman Gautam, this is not the right answer. We don't write Canfora, है ना? Coffea Canfora is the right answer. And Robusta is not the right answer, Abhishek Kumar. It's Robusta, है ना? Caffea Canfora and Caffea Arabica. ठीक है? Caffea Canfora को ही बोलते हैं Caffea Robusta. ठीक है? Most of you know the answer. Good, good, good. चलिए आगे बढ़ते हैं and we'll see our progress. इसका आंसर देखते हैं किसको पता आपने से. Chikori, sir. Yes, sir. Chakori. Chikori. नहीं, चिकोरी. Na, it's a substitute to, we have learned yesterday that it's a substitute to your coffee beans. Good. So this is it. I think fair enough. We have good grasping onto the topic that we have learned yesterday. Let's move forward and address the topic further. हाँ जी, इसके पहले क्वेश्चन किसका आया था? क्वेश्चन आया था रणवीर का क्वेश्चन आया था. रणवीर आप पूछ सकते हैं, क्या पूछ रहे थे? बोलिए. सर हाई रोस्टिंग. High roasting is nothing but it is roasting the coffee beans on a higher temperature for a longer period of time. Bitterness बढ़ जाती है. सर तो मतलब उसका बिटरनेस बढ़ जाता है और जो कॉफी लेवल रहता है वही रहता है कि मतलब हाई रोस्टिंग करने से उसका कॉफी लेवल पे भी कोई bitterness, it has everything to do with bitterness. See, coffee will remain coffee, है ना? A coffee bean will remain coffee bean. The only thing that differs is the temperature at which it is roasted. It is as good as boiling the milk. The milk remains milk. आप उसको थोड़ा टाइम बॉईल करोगे तो वो फटेगा नहीं, थोड़ा और टाइम बॉईल करोगे तो रबड़ी बनने को स्टार्ट होता है, थिकनिंग होना स्टार्ट हो जाता है. तो मिल्क रिमेन्स मिल्क, बट वो केवल उसका फ्लेवर चेंज होने लगता है, होता है ना, फ्लेवर आने लगता है मिल्क के अंदर में. सिमिलरली यू कैन अंडरस्टैंड विद रिगार्ड टू द कॉफी. कॉफी को बहुत हाई रोस्ट करेंगे तो आपका बिटरनेस आ जाएगा. ठीक है? आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी. एनीथिंग एल्स? अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड. चलिए. Now the other part which is still remaining is the processing of coffee. कल मैंने आपको एक ट्रेलर दिखाया था how the coffee is processed, जिसमें आपने जाना grinding, roasting, and all. As today we are going to learn the two methods, industrial methods which are followed widely depending upon the availability of resources. When I say resources, I mean precisely the water. The manufacturer or the countries which have sufficient water, they may opt for a wet method. The manufacturers or the countries which have scarcity of water or less water, they may go for a dry method. Now, which method is good, which method is bad? Both the methods are widely popular and very much accepted worldwide. So let's see in dry method and wet method. As the name itself suggests, एक है dry method जहां पर water का use नहीं होता है, एक है wet method जहां पर water का use होता है. In a layman's language, this is what we can understand. Further देखते हैं क्या है dry method और wet method में. The berries are put through a depulping machine and remove the fleshy part of the berry. Berry की बात हो रही है, मतलब कॉफी बेरी की बात हो रही है ना, कॉफी का जो बीन्स है उसकी बात हो रही है. कल आपने इसकी इमेज देखी हुई है. Then it is placed in large vats and are allowed to ferment partially for 20 to 40 hours. ये बात हो रही है ड्राई मेथड की. ठीक है? फर्मेंटेशन किया क्या कि कॉफी बीन्स को लिया और उसको लेयर लगा दिया उसका. ये क्या हो रहा है इसके ऊपर में? फर्मेंटेशन स्टार्ट हो रहा है, ड्राई होना स्टार्ट हो रहा है. The beans are thoroughly washed and then spread out of the sun to dry completely. The next stage is removal of the parchment by machines to leave just the clean olive green beans. पार्चमेंट का मतलब होता है, आप देखते होंगे काजू जो होता है ना, जैसे काजू को आप इमेजिन कीजिए, जो आप देखते होंगे, अखरोट आप खाते हो घर में, या फिर पिस्ता मान लीजिए, सब बेस्ट एग्जांपल इज पिस्ता.
तो पिस्ता के ऊपर देखते हैं कोई कवर होता है, एक पिस्ता का तुम सीड्स खाते हैं ना, तो उस कवर को ही पार्चमेंट आप कह सकते हैं। जैसे कवर में वो सीड रहता है और एक्चुअली कॉफी भी उसी तरह की कुछ सीड में पार्चमेंट में रहता है, ठीक है। सिमिलरली द वेट मेथड, द बेरीज आर स्प्रेड आउट थिनली इन द सन एंड लेफ्ट। गाइस एक सेकंड, ये थोड़ा ना ये रिवर्स हो गया टाइपिंग में मेरे से। दिस इज योर ड्राई मेथड, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा मेरे से रिवर्स हो गया टाइपिंग में। आई जस्ट रेक्टिफाई दिस, कुछ गड़बड़ ना हो आगे वाले क्लास में। Now it is good. ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को ना? चलिए, तो ड्राई मेथड में क्या है, द बेरीज आर स्प्रेड थिनली ऑन द अंडर द सन एंड लेफ्ट टिल द पल्प श्रिवल्स, सिकुड़ता जब है, टाइटली ऑनटू द पार्चमेंट एंड अलाउज टू ड्राई। द बेरीज आर देन पुट थ्रू अ हलिंग मशीन। हलिंग मशीन कुछ नहीं होती है, जो आप देखते होंगे गांव देहात में, आपने देखा होगा जहां से आप धान अलग करते हैं, देखा होगा किसी ने अगर हलिंग, जो धान अलग किया है तो हलिंग मशीन टाइप का होता है, विच रिमूव्स द पार्चमेंट एंड द पल्प इन वन स्टेज। बहुत सिंपल मेथड है ड्राई मेथड, और वेट मेथड जो उसमें वाटर का इस्तेमाल करते हैं, लेमन लैंग्वेज में आपको इतना समझा सकता हूँ। Still people are coming for the class. They'll join us. Okay, so now we have understood about the method of processing of coffee, right from the harvesting of coffee beans जो हमने कल देखा था, आज हमने देख लिया how the coffee is processed dry and wet methods से। Now let us understand this. The coffee beans are ready. It is now to be produced as coffee that we drink, that we consume. So what are the stages or what are the different types of preparation of coffee as a drink, as a beverage? अब बात आती है हम लोग जहां पर हम लोग बेवरेज को, अभी तक तो बात हो रही थी हार्वेस्टिंग हो रही है, फार्मर्स कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहे हैं प्रोसेसिंग, काम तो आपका स्टार्ट होगा यहाँ से जहां पर आपका प्रिपरेशन ऑफ कॉफी एज ए बेवरेज होगा। क्या क्या मेथड है? 3 मेथड प्राइमरली पॉपुलर है, फिल्ट्रेशन, देन percolation and boiling or steeping. Filtration is nothing but it is the, as the name itself suggests, as I have already always stressed upon the terms. If you know the terms well, you can explain in your own terms, in your own words. The drip pot is consists of an upper compartment which perforated with the lower compartment, which the receiver of the beverage. Now, चाय छन्नी को अगर आप इमेजिन करो, है ना, इफ यू हैव सीन दैट फिल्ट्रेशन, वैक्यूम फिल्टर भी बोलते हैं इसको हम लोग कॉफी के अंदर, वैक्यूम फिल्टर भी चलता है, और वैक्यूम फिल्टर भी चलता है इसके अंदर में। तो इट हैपेंस दैट द टॉप लेयर इज हैविंग अ मसलिन क्लॉथ, या फिर आप उस पे आप कोई बहुत पतला फिल्टर टाइप का लगाते हैं, परफोरेशन टाइप का, जहां पर से कॉफी ड्रिप होकर के वाटर ड्रिप होकर नीचे जा रहा है, वो इन्फ्यूज अल्टीमेटली ब्रूइंग हो रही है वहां पर। एंड आपने देखा होगा कि उसको आप पोर करते हैं कप्स में, मे बी समटाइम्स इट हैपेंस विद मिल्क आल्सो, मिल्क में भी आप पोर करते हैं, समटाइम्स आप यू डोंट पोर विद द मिल्क एंड गो फॉर अ ब्लैक कॉफी। The second method is percolation method. Percolation is nothing but it is also known as percolator. अगर आपने देखा होगा तो कॉफी का जो फ्लास्क आता है, जो परकोलेटर जिसको हम बोलते हैं, इंडस्ट्री में जाएंगे आप देखेंगे भी, अदरवाइज अमेज़न वगैरह पे भी इजीली अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उसको। It's a coffee basket and hollow stem to support the basket. Basically होता क्या है, percolation में the coffee powder or the coffee grind comes in contact with the water many a times. बहुत बार कांटेक्ट होता है, और जो पाउडर होता है वो कोर्स हो जाता है, कोर्स होता है बेसिकली वहां पर। एंड द थर्ड मेथड इज द बॉइलिंग और द स्टीपिंग मेथड। सी, बॉइलिंग ऑफ अ कॉफी इज किलिंग द कॉफी, मैंने कल भी शायद ये कोट यूज किया होगा आपके लिए। तो कॉफी जनरली शुड नॉट बी बॉइल्ड। नाउ स्टीपिंग इज बेसिकली बॉइलिंग नियर टू द और बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, उसके फ्लेवर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। नाउ हाउ इट इज डन, इट इज यू मस्ट हैव और अदर यू कैन डू ऑल्सो। हम लोग घर में किसी को सोखना समझते हैं, सोख देते हैं किसी चीज को, जैसे आप किशमिश को सोखते हैं, कई बार फ्रूट्स को सोखते हैं, वो फूल जाता है। दिस इज एक्चुअली स्टीपिंग, और ये वर्ड बहुत काम का वर्ड है, आपको आने वाले सेमेस्टर में भी काम आने वाला है। जब आप बियर की मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे वहां पर भी आपको ये चीज यू विल कम अक्रॉस दिस वर्ड। आगे बढ़े, कॉफी के बारे में कुछ और आपको एज पर सिलेबस जानना है, दैट इज टाइप ऑफ स्पेशलिटी कॉफी। कुछ ऐसी कॉफीज हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे आयरिश कॉफी हो गया, हाईलैंड कॉफी हो गया, जमैकन कॉफी हो गया, कैलिप्सो कॉफी हो गया।
ये कॉफी होती है बेसिकली जिसमें कुछ लिकर या स्पिरिट यूज करते हैं। लिकर या स्पिरिट ये होती हैं जो अल्कोहलिक होती हैं, ठीक है। स्पिरिट्स आर बेसिकली द अल्कोहलिक बेवरेज, विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, वोडका, ये सारे के सारे को स्पिरिट्स बोला जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही जानो, ठीक है। आने वाले सेमेस्टर में डिटेल बताया जाएगा आपको। क्या क्या बोला मैंने? विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, वोडका, ये 5 मेजर स्पिरिट्स हैं। इन्हीं स्पिरिट्स का बेस यूज किया जाता है किसमें? कॉफी में। बेस का मतलब हो गया फ्लेवर। आप मार्केट में देखते होंगे ना, चॉकलेट फ्लेवर कॉफी आ गया है, क्रैनबेरी फ्लेवर्ड कॉफी आ गया। सो ऑल दीज आर योर बेस। तो यहाँ पर अगर आयरिश कॉफी की बात होगी तो इट इज आयरिश विस्की बेस है उसका। हाईलैंड कॉफी की बात होगी, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, 3-4 क्वेश्चन, और ये मैं केवल 4 ही दिया है आपको। इसके अलावा मॉन्क्स कॉफी भी होता है जिसके आप देखिएगा, जिसका बेस होता है बेनेडिक्टिन, उसका बेस होता है। तो अलग अलग तरीके के आपको ये क्वेश्चंस निकल के आते हैं यहाँ पर। आई एम अगेन गिविंग अ हिंट, यहाँ से क्वेश्चंस आपके वाइवा के निकल के आ सकते हैं फ्लेवर्ड कॉफी को लेकर के। कुछ फेमस कॉफी ब्रांड्स हैं, नेस्कैफे भी ऑल आर अवेयर अबाउट, गेलीज है, जेकब है, ग्रैंड मियर है, विलॉर्नॉय है, और इंडिया का बहुत फेमस ब्रांड है ब्रू, आपको शायद पता ही होगा। इंडिया वाज मोर ऑफ अ कंट्री ऑफ टी ड्रिंकर्स। हालांकि कॉफी हैज लेटली बिकम पॉपुलर, और आपको जान के हैरानगी होगी ब्रू इज 1969 का ब्रांड है ये। दिस इज ओन्ड बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर। कोई बता सकता है कि कितना मार्केट शेयर होगा ब्रू का लगभग इंडिया में? एनीवन? हम लोग नेस्कैफे का जनरली बोलते हैं, बट ब्रू को कम ही तवज्जो देते हैं। तो बता सकते हैं एनी गेस क्या मार्केट शेयर होगा ब्रू का कॉफी मार्केट में इंडिया के अंदर में? सर 50%। ठीक है। दिस इज एक्चुअली 50%, sir. 50%, near about 50%. So you can imagine 50% of the market is shared by brew. Actually, it is 49 point something, but ठीक है, 50% is actually exact answer. The 49 is with brew and 51 is with Nescafe. Correct, absolutely. So who has answered that? Sir, Saransh. Saransh. ठीक है. So these two are the major market players. Market players are and they are minting money like anything. और ये कुछ फेमस ब्रांड्स आपको मैंने दिए हैं कॉफी के लिए। फिलहाल कॉफी में आपको इतना ही जानना था। विथ रिगार्ड टू सिलेबस, विथ रिगार्ड टू योर प्रिपरेशन, यू कैन नो फर्दर। आगे बढ़ सकते हैं। एनी क्वेश्चन फॉर मी? The most expensive coffee? Most expensive coffee? Yes, sir. Coffee brand. Whose question is that? Sir, Ranjit Kumar. No, I have to check with that. If you can enlighten me on this, I won't hesitate. Is there any information? Sir, Sir, Kopi Luwak. These are the marketing gimmicks. Most expensive coffee आज की रेट में अगर तुम चाहो तो बना सकते हो, उसमें बहुत सारा कुछ डाल सकते हो, है ना। तो these are the marketing gimmicks. वही इस तरह क्वेश्चन मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ना। तो इस तरह क्वेश्चन मतलब I have ever come across किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी एग्जाम में कि मोस्ट एक्सपेंसिव टी, मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। एक्सपेंसिव उसको बोल सकते हो जो बॉटल्ड होती हैं, आप समझ गए बात को। कॉफी थोड़ा सा मुझे लगता है गड़बड़ है। वैसे आंसर क्या बताया आपने? Kopi Luwak. I have not heard about that, so I won't comment on that. Anyways, apart from this, anything else that is still not clear to the class? Yes, sir. Sir, as you told कि this comes under a non-alcoholic beverage, तो इसका जो base है that is coming in alcohol, तो ये कैसे मतलब differ करता है उससे? These are the flavored alcohol और non-alcoholic का आपको content का मैंने बताया था शायद से, if you have paid attention to the input I had given yesterday, that it has to be below 0.5% of ethyl alcohol volume by volume to be categorized as non-alcoholic beverage. आई बात समझ में? फ्लेवर के अंदर में आपका अल्कोहलिक परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, आप फ्लेवर बढ़ा रहे हो उसका, एंड स्पिरिट या बेस यूज कर रहे हो इसका। करेक्ट है। और ये अल्कोहलिक भी होती हैं, आप जब आने वाले सेमेस्टर में जानोगे तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल इतने ही भी छोड़ दिया है, कंफ्यूज हो जाएगा अदरवाइज आप लोग। आने वाले टाइम पे आप देखोगे कि ये कॉफी, जैसे आपको बताता हूँ, जो टिया मारिया जो लिखा हुआ है यहाँ पर, टिया मारिया ड्रिंक है, एक ड्रिंक है काहलुआ, KAHLUA, ये प्रॉपर कॉफी फ्लेवर्ड ही ड्रिंक्स हैं। लेकिन अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा तो यू विल बी कंफ्यूज, इसके आगे वाली क्लास के लिए छोड़ा गया है ना। फिलहाल आप ये समझिए दीज आर द फ्लेवर्ड कॉफी। ओके, Okay, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. क्लास चलिए, मोस्ट ऑफ यू इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास, तो आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर टू यू। इफ नॉट, आगे बढ़ते हैं। देखिए,
The next most popular non-alcoholic beverage, widely popular, in fact I'll say number one in fact is tea. कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था इसके ऊपर में, which is the most popular non-alcoholic beverage across the world. वाटर के बारे में कल हमने बात किया था, एंड द नेक्स्ट कम्स, है ना, वाटर के बाद सबसे ज्यादा टी, टी के बाद कॉफी आप कह सकते हैं. टी इज वाइडली कंज्यूम्ड अक्रॉस द वर्ल्ड. ये कुछ आपको प्रोसेस दिखाया गया, आने वाले स्लाइड्स में आपको और क्लियर हो जाएगा. देखिए, कॉफी कम्स फ्रॉम, जैसे हम लोगों ने जाना था, कॉफी कम्स फ्रॉम कैफिया अरेबिका एंड कॉफिया रोबस्टा, राइट. The tea comes from a plant by the name of Camellia sinensis. याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, बोल्ड में कर दिया है मैंने, ठीक है. After water, tea is the most widely consumed beverage in the world. Already we know that. There are many ways in which tea is prepared. Russia, China, Sri Lanka, which the major, across globe अगर हम कॉफी की बात करते हैं तो you will find the best of coffees come from which country, which part of the world. कल हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर में. Anyone? Coffee comes from which part of the globe? Majority of the coffee or the best of the coffees? So if you talk about India, then Karnataka. No, not India. I'm talking about the globe. कल हमने डिस्कस किया था इसके. Sorry? You don't answer randomly. एक आंसर कर सकते हैं आप लोग. If you can raise your hand, then you can answer, और chat box में लिख सकते हैं. जर्मन सर. नहीं, Germany is not the right answer. Colombia. Middle East. Middle East नहीं. It's Cuba, it's Jamaica. All these are famous for coffee. और जो आपका climatic conditions है, West Indies countries जो countries हैं, जो आपके जो Caribbean countries जिसको आप बोलते हैं, Cuba, Jamaica, Ivory Coast, and all these are the famous for two things, rather three things: coffee plantation, cigars, tobacco के बारे में जो पढ़ेंगे तो, and third is your rum. World famous rum also comes from that part of the world because of climatic condition. ठीक है, तो कॉफी की प्लांटेशन भी कुछ वैसे ही क्लाइमेटिक कंडीशन को डिमांड करती है. ये तो कॉफी की बात थी. टी, द बेस्ट टीज कम फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? अगर चाय की बात करो तो इंडिया Sir, सर. China. चाइना. एक्सीलेंट. इंडिया भी आंसर आया है, बहुत अच्छा. और क्या है? अफगानिस्तान सर. अफगानिस्तान. अफगानिस्तान इज नॉट द मेजर प्लेयर इनटू दिस. वो ठीक है. Morocco. नहीं, नॉट मॉस्को. यू आर मिसिंग वन ऑफ द Morocco, sir. सॉरी, you are missing one of the most major player. श्रीलंका. जापान एंड साउथ श्रीलंका. श्रीलंका. ठीक है. श्रीलंका, चाइना एंड इंडिया, they contribute majority of share of tea. In fact, they export high quality of tea also across the globe. And Ceylon tea आपने अगर सुना हो तो CYLON, Ceylon tea, है ना, श्रीलंका का पुराना नाम है ये. Ceylon अगर आपको पता हो तो, जीके के बारे में थोड़ा आपको जानकारी हो तो. So they are also served differently in China, and small cups often served as cold or iced tea. अलग-अलग वेरिएशंस है. चाय बहुत कॉमन है, हम घरों घर में हम लोग पीते रहते हैं. ब्लैक टी, ग्रीन टी. आज हम लोग जानेंगे क्या क्या चीजें होती हैं, उसको क्यों ग्रीन टी बोलते हैं, क्यों व्हाइट टी बोलते हैं, क्यों उसको ब्लैक टी बोला जाता है. विल कम अक्रॉस दिस. आइए देखते हैं. ये कुछ स्टेजेस हैं आपके टी प्रोसेसिंग के. जैसे कॉफी प्रोसेसिंग आपने पढ़ा था, रोस्टिंग एंड ऑल. इसमें आप देखेंगे प्रोसेसिंग ऑफ टी के अंदर में द प्लकिंग की बात अगर हो रही है तो हम टी लीफ की बात कर रहे हैं. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस. इन कॉफी द बीन्स आर यूज्ड. बीन्स का मतलब सीड्स की बात हो रही है. इन टी व्हाट इज यूज्ड? द लीफ इज यूज्ड. पत्तियों का इस्तेमाल होता है. ठीक है, दैट इज द रीजन जो एक्सपेंसिव टी ब्रांड्स हैं, अगर आप एक्सपेंसिव चाय लेने जाएंगे तो यू विल बी गेटिंग द लीफ. आपको कई बार लीफ मिलता है. और बहुत सस्ते अगर चाय लेने जाएंगे मार्केट में तो आपको धूल मिलती है, इसको टी डस्ट बोलते हैं. मार्केट में जो आपको दिखता होगा सस्ता चाय मिलता है, दैट इज टी डस्ट. फ्लेवर का बहुत फर्क होता है. प्लकिंग इज प्लकिंग दोज लीव्स. विथरिंग इज बेसिकली ड्राइंग दोज लीव्स, है ना. एंड फर्मेंटेशन एंड ऑक्सीडेशन, प्लीज ध्यान दीजिए यहाँ पर. दिस फर्मेंटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्मेंटेशन व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इनटू योर कमिंग क्लासेस ऑफ बियर, और जो भी आप पढ़ेंगे उसके बारे में. वहां पर ईस्ट का इस्तेमाल होता है. यहाँ पर द ईस्ट इज नॉट यूज्ड. फर्मेंटेशन और ऑक्सीडेशन का मीन्स कंट्रोल्ड कॉन्टैक्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है. ठीक है, this is basically in controlled contact of oxygen, and then a firing is done. Firing is basically heating,
and it is to stop the oxidation, further chemical reaction which may change the chemical properties of the tea. That is the reason forceful firing is done so that the oxidation or the fermentation stops. रोलिंग की बात अगर हो रही है, रोलिंग मींस टी लीफ की रोलिंग की बात हो रही है। मैं आपको समरी आपको बता रहा हूँ, आगे आपको नोट्स में मालूम पड़ेगा आपको। ड्राइंग, टी लीव्स की ड्राई की बात कर रही है। एजिंग एंड क्यूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ टी। टी एक्सपेंसिव वहां पर हो जाती है जहां पर टी की एजिंग की जाती है। आपने अगर सुना होगा अल्कोहलिक बेवरेज के अंदर भी बोला जाता है वाइन एजिंग की जाती है, विस्की की एजिंग की जाती है। जितनी पुरानी विस्की होती है उतनी महंगी होती है। एजिंग की बात हो, जितना पुराना वाइन होता है उतनी महंगा होता है। चाय में भी कुछ कुछ ऐसे ही है। क्योरिंग का मतलब टू ब्रिंग समथिंग टू इट्स ऑप्टिमल कैरेक्टरिस्टिक, द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक में लाने के लिए, ठीक है। एंड फाइनली सॉर्टिंग। सॉर्टिंग इज बेसिकली द ग्रेडिंग ऑफ टी। आगे आने वाले स्लाइड्स में आप देखेंगे कोर्स टी होती हैं, डस्ट टी होती हैं, पिको टी होती हैं, पिंक टी होती हैं। ऑल दिस टी के बारे में आप जानेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, जो लो ग्रेड की चाय होगी वो धूली होती है, डस्ट जिसको बोलते हैं, टी डस्ट जिसको बोला जाता है। जो साथ में आप टपरी वगैरह पे देखते हैं, ठेलों पे देखते हैं, वो कुछ वैसा ही यूज करते हैं। लेकिन घर पे अगर हम पीते हैं तो क्वालिटी चाय पीने की कोशिश करते हैं, है ना। दानेदार चाय, ऐड भी आता है बहुत सारा, आप देखते होंगे। ये देखिए कुछ कीवर्ड्स हैं जो टी डीलर्स यूज करते हैं, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैं। पिको, पिको इज बेसिकली लार्जर पीसेस स्मॉल टाइटली रोल्ड लीव्स टुगेदर विद ओपन लीव्स। अगर आप किसी चाय की पत्ती के पैकेट पे देखते हैं पी लिखा हुआ है तो आप समझिए उसको पिको को इंडिकेट कर रहा है। और ये बात हो रही है चाय की पत्तियों की बात हो रही है कि वो लार्ज पीसेस होंगी, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होंगी। O for orange, it indicates the good quality of tea. F is the flowery grade. ये आपने याद कर लीजिएगा, पहले बता रहा हूं मैं आपको। F is the flowery grade, indicates a flowery grade of good flavor. मतलब किसी भी फ्लावर का उसके अंदर में फ्लेवर हो सकता है। आप अभी आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे ओलोंग टी होगा, ओलोंग फ्लेवर टी होती है, चाइना टी होता है, you know, all these are flavored teas. Then you have orange pico, long thin leaves that are closely twisted, yellow leaf tips and bud leaves are sometimes included. Souchong China से ही आता है, largest and the coarsest of the whole grade, leaf grade. And the blending is basically the combination or the mixture of two or more brands. So let's say अगर टाटा टी लिया आपने, एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, टाटा टी लिया आपने रेड लेबल लिया, दोनों चाय की क्वालिटी अलग है। जो पीते हैं उनको पता होगा, जो चाय के शौकीन है उनको पता होगा इसके विषय में कि सब टी का अलग अलग फ्लेवर होता है। लाइक यू आर ब्रांड स्पेसिफिक। अगर आप रेड लेबल टी ही पीते हो तो रेड लेबल टी ही प्रेफर करेंगे आप। अगर आप टाटा टी ही पीते हो तो टाटा टी ही प्रेफर करेंगे। लेट्स से अगर आप ब्लेंडर है, आप दोनों चाय को मिला करके एक नया ब्रांड बनाना चाहते हैं, दिस नोन इज ब्लेंडिंग। आई बात समझ में? मिक्सिंग ऑफ टू और मोर ब्रांड्स टू क्रिएट अ थर्ड ब्रांड, ये बहुत पॉपुलर है विस्की मैन्युफैक्चरिंग में, टी मैन्युफैक्चरिंग में। सारा खेल ही ब्लेंडिंग का होता है, ठीक है। ब्लेंडेड टी आप देखिएगा, जब एडवर्टाइजमेंट आता है टीवी पे लिखा रहता है ब्लेंडेड टी, आप पढ़िएगा पैकेट पे भी लिखा रहेगा, आप घर जाएंगे तो घर पे देखिएगा अगर होगा तो। ये देखिए कुछ स्पेशल काइंड ऑफ टी है। जैसे कॉफी में आपने जाना था, थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने, कॉफी में आपको बेनेडिक्टिन कॉफी, यू नो, हाईलैंड कॉफी, आयरिश कॉफी। उस तरह से आप देखिए यहाँ पर अर्ल ग्रे टी, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं। इट्स अ ब्लेंड ऑफ इंडिया एंड चाइना टी with bergamot oils. Bergamot क्या होता है? बेसिकली फ्रूट्स होता है, ठीक है। It is light and delicately scented. Bergamot is a pear-shaped orange and is extracted from the red. असम टी बहुत पॉपुलर है हमारे इंडिया के अंदर में, स्ट्रॉन्ग है, रिकूपरेटिव। स्ट्रॉन्ग रिकूपरेटिव मतलब जो स्ट्रॉन्ग टी होती है। दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग टी इज द, बाय द वे जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, मस्काटेल इज वन ऑफ द ग्रेप्स। ये जो आप देख रहे हैं फ्लेवर ऑफ मस्काटेल इज वन ऑफ द ग्रेप्स, कैन बी ड्रंक विद लेमन और मिल्क। एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में यहाँ पर, लिखा हुआ नहीं है लेकिन अचानक से ध्यान आया। Which is known as the champion of tea in India? Which tea is known as champion of tea? गेस करने की जरूरत नहीं है, ढूंढ लीजिएगा आंसर इसका क्लास के बाद, ठीक है। बस आपको दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग टी। निखिल त्रिपाठी ने आंसर किया इसका। यस सर। ठीक है, आप एक बार ढूंढ भी लीजिएगा इसको, ठीक है। जैस्मिन, जैस्मिन इज बेसिकली चाइना टी मिक्स विद सेंटेड जैस्मिन। अगेन देखो यहाँ सारी ब्लेंडिंग की बात हो रही है, जहाँ मिक्सिंग की बात हो रही है, ब्लेंडिंग की बात हो रही है वहां पर। लेडी लंडन मेरी मिक्सचर, वेरी फेमस टी, बहुत पुरानी है ये। स्पेशल ब्लेंड ऑफ चाइना, इंडियन एंड फॉर्मोसा टी। फॉर्मोसा टी बेसिकली क्या होती है? इट्स अ टी फ्रॉम ताइवान। जो ताइवान की टी चाय होती है उसको एक जनरल टर्म है उसका, जिसको आप बोलते हैं फॉर्मोसा टी बोलते हैं। एंड देन यू हैव ग्रीन गन पाउडर, ये सारे टर्मिनोलॉजीज हैं। लैप्सम, सुचांग, इसके बारे में देख चुके हैं आप ऑलरेडी। एंड टिजान्स, वेरी फेमस
टी दैट हैव हर्बल बेस, दैट इज जैस्मीन, कैमोमाइल, इसको हम लोग बोलते हैं टिजान्स। ये देख लो एक बार, बेसिक फॉर्म्स ऑफ टी हैं जो क्या क्या है, ब्लैक टी, ग्रीन टी, उलोंग टी और व्हाइट टी। और पढ़ लो इसको, मैं चाहूंगा आप लोग पढ़ो एक बार इसको, ठीक है। नोट्स आई विल शेयर इनटू योर गूगल क्लासरूम, ये प्रेजेंटेशन वाला आप एक बार इसको देखिए। ऑक्सीडाइजिंग की बात जहां पर हो रही है उसको फर्मेंटेशन ही समझना, ठीक है। फर्मेंटेशन और ऑक्सीडेशन को यहाँ पर हम लोग एक चलता है चाय के अंदर, स्टेप की बात हो रही है, फर्मेंटेशन और द ऑक्सीडेशन। Done? Done? चलिए कुछ ब्रांड नेम देख लीजिए। इंडिया में आप सब जानते हैं, इसके ऊपर में टेटले है, दार्जिलिंग है, लिप्टन है, ट्विनिंग्स है, ब्रुक बॉन्ड है, ताज महल है, स्पेंसर्स है, लैपसांग सुचांग है, ऑल दीज आर द फेमस ब्रांड नेम्स ऑफ टी। यही था आपका टी एंड कॉफी के अंदर में। और जैसा कि आपको मैंने बताया, we will be spending 3 classes onto this topic. I have taken good time explaining you coffee, one dedicated class for coffee, one dedicated class for tea. The reason I wanted to give you this concept, this is very important, you will realize this in due course of time, आने वाले टाइम पे जो आप अपीयर करेंगे इंटरव्यूज में। नेक्स्ट क्लास we are going to utilize and we are going to wind up this topic. कल जो क्लास में मिलने वाले हैं उसमें हम लोग इसको टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। we'll be learning about squashes, we'll be learning about juices, थोड़ा सा मतलब बेसिकली रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स और स्टिमुलेटिंग रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स और नरिशिंग ड्रिंक्स के बारे में थोड़ा हम बात करेंगे, ठीक है। बहुत स्मॉल टॉपिक रहेगा। मेन जो टॉपिक था आपका वो था आपका टी एंड कॉफी। क्वेश्चन बहुत सारे निकल के आएंगे आपके एग्जाम के अंदर में इससे। थियोरी एग्जाम तो होगा नहीं आपका, आई थिंक ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होगा, बट वहां पर भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे और आपको मैंने बताया ये कहाँ से निकल के आएंगे, है ना। जैसे आपको दार्जिलिंग टी पूछा या ओलोंग टी, किसान्स के बारे में पूछ सकता है आपको। देन दे कैन आस्क यू ओलोंग क्या नाम है इसका, ब्लैक टी, ग्रीन टी में क्या डिफरेंस है, एनीवन, मतलब द प्लांट ऑफ टी, द प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉफी, सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉफी, ऐसे कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं। इसको थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना, इस टॉपिक को थोड़ा सा, नोट्स जो मैं दूंगा आपको केयरफुली पढ़ना, बिकॉज आगे की प्रिपरेशन भी इसी टॉपिक से आपकी होगी। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। आई थिंक is there, if I'll mark the attendance, और अगर कुछ क्वेश्चन है आप लोगों का तो जरूर आप लोग पूछ लीजिए। You can share the question in the chat box or you can unmute yourself and you can speak up by the time I am taking your attendance. जयमंगल कहाँ बैठा है? घर में, स्टेशन पे? घर में है सर, घर में स्टेशन मतलब नहीं तुम घर पे, तेरा घर स्टेशन के नजदीक है क्या बहुत? जयमंगल, unmute yourself. म्यूट Jaimangal, please mute yourself. सर जयमंगल कियोस्क ज्वाइन किया है। क्या ज्वाइन किया है? कियोस्क क्या